So today we will discuss why to use IoT. हम IoT को क्यों यूज में लेते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो ये IoT के बारे में अब जो सर कहेंगे कि इसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि IoT क्या होता है। सर फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, लेकिन फिर से हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसने घुमा फिरा के वही सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो वाई वी यूज IoT, क्यों हम IoT को यूज में लेते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज़ की बात करते हैं। तो IoT इनेबल्स कंपेयरिंग टू ऑटोमेट प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट. इट आल्सो cuts down on waste and improve service delivery, making it less expensive to manufacture and delivery goods, as well as offering transparency into customer transactions. अब हाउ IoT वर्क्स, कब IoT और किस तरीके से काम करता है। IoT devices share the sensor data they collect by the connecting to an IoT gateway or other edge device, where the data is either sent to the cloud to be analyzed or analyzed locally. Sometimes these devices communicate with other related devices and act on the information they get from one to another devices. How does IoT work स्टेप बाय स्टेप। जब पर्टिकुलर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब मैं बात करता हूं तो वो स्टेप बाय स्टेप से काम करता है। इन ए नटसेल IoT works like this. Device have hardware like sensor that collect data. The data collected by the sensor is then the shared via the cloud and integrated with the software. The software then analyzed and transmitted the data to use via an app or websites. What are the four main components of the IoT systems? Each application and example of IoT highlights four different integrations of element: sensor, device, connectivity, data processing and user interface. What is IoT and how does it work? किस तरीके से काम करता है। A IoT is fixed quantity of unit and depends on the financial security trade. For stocks, the typically lot size was round lots of 100 share for many years. Until the advent of offline trading, a round lot can also refer to a number of shares that can eventually be divided by 100, such as 300, 1200 and 15,500 shares. How does IoT work in our every daily lives? Use of the IoT devices is also exploring in the consumer sector. Refrigerator, smart TV, smartwatch, car, trucks, heating and cooling system, fitness machine or tracker are example of the IoT enabled product with which you may have the personal experience. कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। However, all the complete IoT system are the same in that they represent the integration of four distinct components: sensor, devices connectivity, data processing and user interface. What are the three stages of IoT? कौन कौन सी होती हैं? पहली स्टेज होती है सेंसर एंड एक्यूरेटर, सेकंड स्टेज होती है गेटवे एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, थर्ड स्टेज होती है एज IT डेटा प्रोसेसिंग, फोर्थ स्टेज होती है डेटा सेंटर एंड क्लाउड। जब हम IoT एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो IoT एप्लीकेशंस अलाउ द कनेक्टेड टू योर होम एप्लीकेशन लाइक एयर कंडीशन, लाइटिंग, लॉक, थर्मोस्टेट, थेफ्ट अलार्म सिस्टम और water note into a single system, have the controlled at your the फायर सिस्टम, स्मार्टफोन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं
IoT एप्लीकेशंस के अंदर हम इनको यूज लेते हैं। IoT को यूज करने से हमें बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IoT एप्लीकेशंस? तो पहला बेनिफिट जो होता है वो होता है रियल टाइम एसेट्स और रिसोर्स विजिबिलिटी। नेक्स्ट होता है रिड्यूस कॉस्ट, improved operational efficiency, data-driven insight for the quick decision making, end-to-end and remote monitoring and management of asset resource। एक होता है रियल टाइम प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट, इम्प्रूव एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जब IoT डिवाइस कम्युनिकेट करता है तो वो किस तरीके से करता है? वो वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम दोनों के थ्रू ये क्या करता है? कम्युनिकेट करने का काम करता है किसी भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। अब अगर हम PPT पे आए तो एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंटरनेट। System can be announced so that the sensor uploaded data continuously to cloud, and various algorithms like machine learning techniques can be applied to these data so that we can analyze the data properly and produce efficiently outputs, and based on result the cloud can perform predefined action in response to sensor data। नेक्स्ट होता है द सिक्योरिटी कैन बी enhanced फ्रॉम आवर स्मार्ट डिवाइसेस एज वी कैन कीप एन आई एट आवर होम, वर्क प्लेस एटसेट्रा। ऑटोमेटेड रैपिड रिस्पॉन्स लाइक एन इंडस्ट्री when the certain parameter get distributed automatically action are triggered to counter the effect। license plate recognition used in the traffic system monitor places where the surveillance is difficult। होता है IoT in agriculture and healthcare systems। एक IoT स्मार्ट वेरेबल व्हीकल एंड कार्स, स्मार्ट ग्रिड एंड इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ग्रिड्स, इन सारी चीज़ों में भी IoT यूज में आता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं द मेजर कौन कौन से होते हैं मेजर कंपोनेंट्स IoT के अंदर? पहला होता है थिंग और डिवाइसेस, दूसरा होता है गेटवे, तीसरा होता है क्लाउड, फिर होता है एनालिटिक्स और यूजर इंटरफेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं? IoT के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? IoT के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिंग और डिवाइस, थिंग्स और डिवाइसेस। These are the fitted with the sensor and actuator. Sensor collect the data from the environment and give to gateway, whereas actuator perform the action as directed after the processing of the data। एक होता है गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे, गेटवे क्या होता है कि द सेंसर गिव डेटा टू गेटवे एंड हियर सम काइंड ऑफ द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज इवन डन। इट आल्सो एक्ट एज द लेवल ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द नेटवर्क एंड फॉर द ट्रांसमिटेड डेटा। एक होता है क्लाउड, द डेटा आफ्टर बीइंग कलेक्टेड एज द अपलोडेड टू क्लाउड। क्लाउड इज सिंपली टर्म is basically a set of servers connected to internet 24/7। एक होता है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स द डेटा आफ्टर बीइंग रिसीव्ड इन द क्लाउड प्रोसेसिंग इज डन, वेरियस एल्गोरिथम आर अप्लाइड हियर फॉर द प्रॉपर एनालिटिक्स। हेलो जी सर। सर एक बार गेटवे दोबारा से समझाएंगे एक बार थोड़ा उसके साथ थोड़ा। ये है गेटवे। गेटवे क्या होता है कि गेटवे एक तरीके से जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो एक गेटवे होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे जिसको बोलते हैं। ठीक है,
इसके अंदर सिंपली भाषा में एक चीज समझने की कोशिश करना कि जब किसी भी आईओटी डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं तो गेटवे होता है वो एक फिजिकल डिवाइस होता है जो पर्टिकुलर किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जो आईओटी डिवाइसेस के अंदर गेटवे काम करता है वो करता है सेंसर्स के साथ में उनको कनेक्ट करने का, आईओटी मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने का, स्मार्ट डिवाइस और क्लाउड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। गेटवे जो सर्वर होता है वो वायरलेस एक्सेस पोर्ट के साथ में आईओटी के डिवाइसेस के साथ में काम करता है जो पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। आईओ गेटवे की मैं बेसिकली कुछ सर सेंसर्स को हम लोग गेटवे कह सकते हैं सर। हाँ जी सेंसर्स जो हैं वो सर, भी नहीं मतलब एक सेंसर को हम गेटवे नहीं कर सकते, लेकिन सेंसर को जो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करता है वो जो मीडियम होता है वो गेटवे होता है। दूसरी चीज मैं बात करता हूँ गेटवे की कि गेटवे जी जी होता सर। क्या है। गेटवे इज ए नेटवर्क नोड यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क विथ डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टुगेदर। यानी दो नेटवर्क को ओ, आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो गेटवे करता है। लाइक इंटरनेट है, एक आपके सेंसर है, तो सेंसर एक अलग डिवाइस हो गया, इंटरनेट डिवाइसेस अलग हैं, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? गेटवे करता है। गेटवे सर्विस आईपी रिंग जैसे बना हुआ है तो वो उनको आपस में क्या कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे ही प्रॉपर सर, वो करेगा सर। जब हम जब IPv4 ओपन करोगे ना तो उसमें एक होता है आईपी जी सर। एड्रेस, एक होता है सबनेट मास्क गेटवे। सबनेट मास्क, बिल्कुल सर, एक होता है सबनेट डिफॉल्ट मास्क गेटवे। गेटवे। तो वो डिफॉल्ट गेटवे बिल्कुल। जब तक हम पुट नहीं करते ना तब तक वो हमारा सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं लेता है। अब वो जी सर्वर सर। के साथ कनेक्टिविटी कौन लेता है? जब हम पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक तो डीएनएस की और एक डिफॉल्ट गेटवे की। जब दोनों वो बिल्कुल पाथ सर। डिसाइड होंगे तभी वो क्या करेगा, जो डिवाइस है वो सर्वर के साथ में इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी लेगा। तो गेटवे का काम क्या है? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना, एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। और आईपी एड्रेस का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है उसकी लोकेशन फाइंड करना कि किस सोर्स से डेस्टिनेशन पे पर्टिकुलर कनेक्शन जा रहा है। गेटवे जब आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो एक वो डिवाइस होता है जो नेटवर्क के साथ में काम करता है और वो सेंड करता है लोकल नेटवर्क ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क ट्रैफिक के साथ में जोड़ने के लिए, उस कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको सबनेट मास्क नंबर भी बोलते हैं, जो एक रिलेशन जी भी सर। प्रोवाइड करवाता है। किसके साथ में रिलेशन प्रोवाइड करवाता है? कंप्यूटर, राउटर, स्विच, हब। ये नाम सुने हुए हैं ना आपके? बिल्कुल सर, सुने हुए हैं, पर सर बेसिकली ये गेटवे हम लोग जानते थे कि गेटवे भी डिफाइन करना पड़ता है, सबनेट मास्क आईपी जो है जी सारी चीज डिफाइन करती है, पर बेसिकली सर, इनका जो है ना क्या क्या रोल है सर इनका इनका। रोल आईपी का जैसे है कि मतलब उसकी आइडेंटिटी हो गई कि भाई इस डेस्टिनेशन से देखो वहां सर, तक का। एक मिनट में बताता हूँ, अभी रुक जाओ। देखो आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि किसी भी सर्वर से कोई भी डेटा किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और उस डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो उसका क्या होता है कि पर्टिकुलर रूट फाइंड होता है। वो किससे फाइंड होता है? आईपी एड्रेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे वो डेटा ट्रांसफर हुआ है। आईपी का काम, ठीक है जी। फिर होता है एक डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है कि जब हम सर्वर की कनेक्टिविटी किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ में कनेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस तभी वो एक्सेस करेगा सर्वर जब हम डिफॉल्ट गेटवे मतलब उसका कम्युनिकेशन पाथ सेट करेंगे, जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ में कनेक्टिविटी यानी राउटर की उस डेस्कटॉप तक कनेक्टिविटी के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक जो आईपी एड्रेस डिसाइड करना पड़ेगा। वो आईपी एड्रेस कहाँ से डिसाइड करते हैं? वो राउटर से डिसाइड करते हैं कि किसी भी सिस्टम पे अगर ये गेटवे आईपी एड्रेस डलेगा तो वो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट किसके साथ करेगा? लैन पे उस राउटर के साथ में कनेक्टिविटी करेगा। अगर वो बिल्कुल गेटवे सर। नहीं है तो वो क्या है? वर्चुअल। जब गेटवे नहीं डलता है तो देखो दो तरीके से ऑप्शन आता है। एक होता है ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट आईपी, यानी उसमें इंटरनेट तो चल जाता है
लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि वो डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। हम उसको अनआइडेंटिफाइड डेटा होता है वो, एक तरीके से, समझ गए। और जब डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस और ये सारी की सारी चीज लगते हैं तो उससे पर्टिकुलर हमें पता रहता है कि वो किस सर्वर पे गया है डेटा। ओके। बिल्कुल सर। दूसरी चीज और बता दूं ये क्यों काम में आते हैं। जब हम नॉर्मली तो क्या होता है सिस्टम चलाते हैं, लेकिन आप सब लोग इंडस्ट्री में हो, आप लोगों ने देखा होगा, आप जिस भी सिस्टम पे बैठते हो तो वहां पर आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड बना होता है, ये और नो। बिल्कुल। तो जी सर। उसमें डजेंट मैटर कि आप आज नंबर 1 सिस्टम पे बैठे हो, कल हो सकता है 50 नंबर सिस्टम पे जाके बैठ जाओ। तो काम तो आप अपने सिस्टम पे भी वही कर रहे थे जो 50 नंबर सिस्टम पे बैठ के कर रहे हो, लेकिन हम्म। यहाँ पर आपने वो जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड से उस सिस्टम को एक्सेस किया, तो अब यहाँ पर जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी यूजर आईडी पे सर्वर, वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डेटा सेव हो रहा है। इसी तरीके से जिस दिन दूसरे सिस्टम को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक वहां से भी आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करोगे तो वो आपका डेटा वहां से भी बाय डिफॉल्ट उसी आईडी पे जा रहा है जिस पे कल जा रहा था। जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या कोई भी यूजर होता है, उसका एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है। वो बाय डिफॉल्ट इसीलिए होता है कि आज आप बेंगलोर के किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो सकता है कल आप नोएडा आ जाओ, तो नोएडा से अगर किसी सिस्टम को एक्सेस करोगे तो भी वही सारा सर्वर पे मटेरियल जाएगा जो बेंगलोर से ट्रांसफर हो रहा था। ये जो आईपी एड्रेस का जो खेल है वो आईपी एड्रेस से ट्रैक करता है आपके यूजर आईडी पासवर्ड को, जो डिफॉल्ट गेटवे कहाँ से चल रहा है, जिस सर्वर से चल रहा है जो लोकल मशीन पे कनेक्टेड है। ओके सर, जी सर। ये होता है ये गेटवे का रोल सर। ठीक है सर, ओके। दूसरी चीज, जब हम गेटवे कैसे काम करता है, नेटवर्क गेटवे आर टास्क with linking network by performing translation between different protocol and data format at the network boundary. Companies may deploy gateway to connect the corporate lane to the public internet or the link different internet networks such as the IT और OT network. ओके, ये सारा का सारा चीज होता है। एक होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की बात करते हैं तो डेटा आफ्टर बीइंग received in the cloud, processing is done. Various algorithms are applied here for the proper analysis of the data. Techniques like machine learning etc. are even applied. एक होता है यूजर इंटरफेस, यूजर एंड एप्लीकेशन वेयर यूज कैन मॉनिटर और कंट्रोल द डेटा। एक होता है इज द क्लाउड नेसेसरी फॉर IoT? The answer is simply no, because we can do the processing even locally instead of the uploading the data into the cloud. These techniques are called as the fog computing or edge computing. But they then why we associated the cloud computing with IoT? The reason is also simple, because cloud computing give us the scalability and low cost of the operations. एक होता है if we stop using the cloud resource then this would slow down the growth of the IoT career. So benefit of using the cloud क्या होता है, एक होता है decreased cost of setting up new infrastructure, एक होता है highly scalable, we can use as much we want to, एक होता है pay as much we use just like हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एक होता है इजीली एक्सेसिबल जस्ट बाय द इंटरनेट। एक नेक्स्ट होता है व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग? क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? इन सिंपल टर्म्स इट इज डिफाइंड एज द sorting and accessing of the data and computing service over the internet rather than the managing the file is the locally storage. Cloud computing make it possible to save the files over the internet. It's like having a high performance computer somewhere in the internet and we are only using the computing resource of our the virtual high performance and the computer. इसके अंदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ही होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। पहली होती है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, एक ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस,
नेक्स्ट होता है रिसोर्स पोलिंग, एक होता है ऑन डिमांड रेप एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेस, एक होता है पे एज यू, एक होता है हाउ टू यूज क्लाउड, क्लाउड को किस तरीके से हम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज द सर्विस जिसको हम बोलते हैं IaaS, it is the lowest level of the cloud service. Here we just allocate the hardware as per the demand and rest everything is on our the part, that is the starting from choosing operating system to application programs. एक होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसको बोलते हैं पास. Here we don't deal with the underlying hardware and operating systems, etc. But here we have the control over the application that we want to use and put in our the virtual system. In simple term, it provides an environment for the development purpose. एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसको बोलते हैं SaaS. ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आते हैं. Here the consumer are allowed to use the licensed application that they have subscribed. It's like on demand software. In simple term, it means we take subscription of the services we want and after that we are to those application hosted in the cloud. एक होता है टाइप ऑफ क्लाउड्स. कौन कौन से टाइप क्या होता है क्लाउड सिस्टम. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर ये डे करना जो आपने आस पास और पास दिखाए थे उसमें ये लो. इसमें हाँ इसमें सर IaaS में हम क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या क्या एक्सेस हम कर सकते हैं और पास में क्या कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, क्या क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं, किसके एंड पे ये रहता है मैनेजेबल. सर ये क्लाउड सर्वर के अंदर जब हम काम करते हैं जब पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को लेकर के तो इसके अंदर जो आस होता है ना ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम इसलिए यूज में लेते हैं आस को जब हम पर्टिकुलर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को हम यूज में लेते हैं तो उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग एक पर्टिकुलर फंडामेंटल कंप्यूटर होता है जो उसको डिलीवर करता है किसको, एक नेटवर्क स्टोरेज रिसोर्स को जो पर्टिकुलर किसी भी कंज्यूमर ऑन डिमांड्स बोला जाता है जिसको इंटरनेट के थ्रू एक जगह से, मतलब मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं पे एज यू गो बेसिस मैं बोल सकता हूं. यानी कि जो चीज़ जैसी जिस तरीके से जा रही है जैसा हम उसको चाहते हैं उसी तरीके से ये उसके पे काम करता है. आज के कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है स्पीडली डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए. एक स्पीडली डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज में लेते हैं. क्विकली एंड फ्लेक्सिबल वे टू बिल्ड अप द टेक डाउन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल ऑफ आस इंक्लूड अमेजोन वेब सर्विसेज जो AWS की जिसकी बात करते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एक होता है गूगल कंप्यूटर इंजीनियर जिसको GCE बोलते हैं, एक होता है जॉइन. ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल हैं. जो AWS अमेजोन वेब सर्विसेज हैं ये जो आज के दिन सबसे इंजीनियरिंग आपके कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब सर्विसेज में से आ रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं. इनमें सब में क्लाउड के बारे में ही सिखाया जाता है. दूसरी चीज़ हम इसको आस को जब यूज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं. आस इज ए क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट डिलीवर्स essential IT resources such as the server, networking, storage on demand to subscribe through the pay-as-you-go picking modules. AS allow you to the bypass the cost and complexity of the purchasing and managing physical service and entire data center infrastructure. ये क्या करता है AS का काम होता है. ठीक है. और इसका मेन यूज कहाँ होता है. आस इज मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट कॉमनली हेलो आस
हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अमेजन का क्लाउड जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, हाँ तो वो क्या कि उसमें हम मैनेज क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आज में हम सास के अंदर भी कुछ है जो मैनेज कर सकते हैं, उससे लाइसेंस लेना सर पड़ेगा ये हमें? क्लाउड के ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं कि आज के अंदर क्या कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर किसी भी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। जो सर्विसेज ले रहे हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आज के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और जब पास के थ्रू जब हम काम करते हैं, तो पास के थ्रू जब इसके अंदर क्या होता है कि ये क्लाउड सर्विसेज को जब हम वो करते हैं, परचेज करते हैं, तो आज जो भी इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री 90% क्लाउड पे डिप्लॉय हो चुकी है। क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब पर्टिकुलर कोई भी डेटा सर्वर होता है, तो उसमें डेटा एक होता है, फिजिकल स्टोरेज होता है, और आजकल कुछ क्लाउड पे भी रखने लग गए हैं डेटा स्टोरेज को। क्यों? क्योंकि अगर इन केस किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, तो वहाँ से क्लाउड सर्वर से हम उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम इन सारी यूज में लेते हैं। ठीक है। अब सर से की वॉइस कट रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, यस सर। आ रही है ना? हाँ जी सर, तब आवाज आ रही है। अब दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नाम से पता चला प्लेटफॉर्म, जब पर्टिकुलर किसी भी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज में लेते हैं, तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए उन सारी एप्लीकेशंस को वर्चुअल सिस्टम के रूप में वो डिप्लॉय करने का काम करता है, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कौन? पास। पास का एक और भी काम होता है। पास क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जो पर्टिकुलर किसी भी कस्टमर को एक कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है, जिसके अंदर उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, उसका डिप्लॉइंग भी होता है, उसका रनिंग भी होता है, मैनेजिंग भी होता है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट की। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, और बिल्डिंग, मेंटेनिंग और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लाउड पे यूज कर सकते हैं। आज आप अगर आप कोई किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्लाउड पे कुछ ट्रायल वर्जन के रूप में कुछ फ्री स्पेस मिलता है, तो उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आप वहाँ से आप भी वो क्लाउड यूज में ले सकते हो। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल दूं, जो सैनडिस्क वगैरह जो है, कि जैसे नॉर्मली हम ईमेल के थ्रू 25 MB तक डेटा भेज सकते हैं, लेकिन जो सैनडिस्क वगैरह जो फ्री क्लाउड है, उनसे हम 3 GB 4 GB तक डेटा क्या है, एक सेंडर से रिसीवर तक हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो क्या, एक तरीके से वो क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करवा रहा है। कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपको? गूगल प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। अब सास और पास क्या होते हैं? पास और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्लीट रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस। सास क्या होता है? सास होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज ऑन डिमांड एक्सेस टू रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सास में हम क्लाउड एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं, ये रेडी टू यूज होता है, जबकि पास में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर पहले हमें ऑन डिमांड उसको कंप्लीट करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब हम इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वही होती हैं, 3 तरीके की। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। जिनको इसको अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 5th यूनिट पढ़ लेना, सारा का सारा डीप में दे रखा है इस पर। दूसरी चीज़ प्राइवेट क्लाउड।
प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी यूज्ड बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना एक सर्वर स्पेस परचेज करके रखती है, तो ये क्या हो गया? प्राइवेट क्लाउड हो गया, कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर स्पेस से दूसरे को नहीं देगी। एक पब्लिक क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल हुआ और भी जो क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करवाती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं? फ्री ट्रायल वर्जन किसी को भी यूजर एक्सेस दे सकते हैं। एक होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या होता है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी यूज्ड बाय द स्पेसिफिक कम्युनिटी of the consumer from the organization who may be working together, example the healthcare और industry। एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या होता है? here two or more cloud infrastructure are implemented and there is a switching between resource as per demand and needs। एक so we discussed about the importance of IoT and cloud computing, but where are the challenging in IoT। ये सारी की सारी चीज़ें IoT के लिए कैसे चैलेंजिंग होती हैं? तो फर्स्ट होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है? एज द नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर इंक्रीजिंग, so as poorly designed devices are also getting more prone to the security threats। एक तो privacy, the data of the user has to be protected from theft as the almost all activity done by the individual can be monitored। एक होता है standards, there are no proper standards and documentation discussing the best। एक होता है रेगुलाइजेशन, लीगल इश्यू विथ इन्वॉल्व द क्रॉस border data flow, data retention and data destruction policies। एक होता है डेवलपमेंट, it should be expanded and implemented to even the developing and user deployed country instead of the focusing only on the developed countries। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आर्किटेक्चर कौन सा होता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग? which is one of the demanding technology of the current time, which is giving a new shape to every organization by the providing on demand virtually service resource starting from the small to medium and medium to large। every organization use cloud computing services for the storing information and accessing it from anywhere and anytime only with the help of the internet। in this we will know more about the internal architecture of the cloud computing। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी। Transparency and scalability, security and intelligent monitoring are some of the most important constraints which every cloud infrastructure should experience। Current research on other important constraints is helping cloud computing system to come up with new features and strategy with a great capability of providing more advanced cloud solutions। एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होता है? क्लाउड आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। द ब्लोड फिगर रिप्रेजेंटेड एज द इंटरनल आर्किटेक्चर व्यू द क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा? ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। देन आफ्टर एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है जो वायर्ड और वायरलेस मीडियम के थ्रू होता है। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो मेन लेयर होती है, मैनेजमेंट लेयर होती हैं और सिक्योरिटी लेयर होती है। इसको क्या बोलते हैं? बैकएंड बोला जाता है, जिसमें कौन कौन सी होती हैं? एप्लीकेशन होता है, सर्विस होता है, क्लाउड रन टाइम होता है, स्टोरेज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द computational of both SOA service oriented architecture and EDA event driven architecture, client infrastructure, application services, runtime, cloud storage, infrastructure management and security। all these are the components of the cloud computing architectures।
एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में in front end of the cloud architecture refers to the client side of the cloud computing system, means it contain all the user interfaces and applications which are used by the client to access the cloud computing services resource. For example, use of the web browser to access the cloud platforms. एक होता है client infrastructure. The client infrastructure is a part of the front-end component. It contains the application and user interface which are required to access the cloud platforms. In other words, it provides a GUI, graphical user interface, to interact with the cloud. The backend. The backend refers to the cloud itself, which is used by the service provider. It contains the resource as well as the manage and resource and provide the security mechanism. Along with this, it includes the Hug storage, virtual application, virtual mechanism, traffic control mechanism, deployment and moderns. एक होता applications. Application in backend refers to a software or platform to which client access, mean it provides the service in backend as per the client requirements. One is the services. In services in a backend refers to the major three type of the cloud based services like SaaS, PaaS and IaaS. Also manage which type of services the use access, and another one is the runtime cloud. Runtime cloud is the backend, provides the execution and runtime platform environment to the virtual machines. Another one, storage. Storage in backend provide the flexible and scalable storage service and management of the stored data. Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकएंड refers to the hardware and software components of cloud like the include service storage, network device or virtualization software. Management in backend refers to the management of the backend component like application, services, runtime cloud, storage, infrastructure, other security mechanism, etc. एक होता है security. Security is the backend refers to the implementation of different security mechanisms in the backend for the secure cloud resource system, file, infrastructure to end users. कहते हैं internet connection acts as the medium or a bridge between the front end and the back end and essential the interaction and communication between front end and back ends. एक होता है डेटा सेट्स और डेटाबेस. डेटाबेस इन ए बैकएंड refers to the provide the database for the storing structured data such as the SQL, NoSQL database. Example of the database services include the Amazon, Microsoft Azure SQL database and Google Cloud SQLs. Another one is the networking. Networking in the backend service that provides the networking infrastructure for the application in the cloud such as the load balancing, DNS, virtual private network. होता है analytics in a background service that provide the analytics capabilities for data in the cloud such as the warehousing, business intelligence and machine learning. एक होता है benefit of cloud computing architecture. Makes overall cloud computing system simply, improve the data processing requirement, help in providing high security, makes it more modular and result in the better disaster recovery, given good user accessibility, reduce IT operating cost, providing high level reliability or scalability. एक होता है व्हाट इज फोक कंप्यूटिंग. फोक कंप्यूटिंग क्या होता है? द फोक कंप्यूटिंग इज ए
Decentralized computing infrastructure in which the data, compute, storage, and application are located somewhere between the data source and the cloud, like edge computing, fog computing, bring an advantage and power of the cloud closure to where the data is created and acted upon. Many people use the term fog computing and edge computing interchangeability because both involves the bringing intelligent and processing closer to where the data is created. This is often done to improve efficiency, though it might also be done for the security and compliance reason. The fog metaphor comes from the meteorological term for the cloud close to the ground, just as the fog connectors on the edge of the network term is often associated with the Cisco company product like the manager. Ginny is believed to have the coined the term. Cisco for computing is also the registered name for computing is open to the community at the large. How does fog computing work? किस तरीके से काम करता है? Fog networking components doesn't replace cloud computing. Fogging enables the short-term analytics at the edge, while the cloud performs resource-intensive and longer-term analytics. Although edge device and sensor are where data is generated and collected, they sometimes don't have the compute and storage resource to perform advanced analytics and machine learning tasks. Through cloud service have the power to do this, they are often too far away to process and data and response in a timely manner. नेक्स्ट होता है इन एडिशन और इसमें फोक कंप्यूटिंग में होता क्या है, मतलब मेन बेसिक क्या है, फंडामेंटल कि हम एक लोकल स्टेशन है या फिर एक लोकल जगह पे इसको बना सकते हैं या फिर ये मनी प्लेस पे होता है? सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? सर मैं ये पूछा था कि फोक कंप्यूटिंग में हम एक जगह सर्वर रखते हैं या मनी प्लेस ऑफ द सर्वर रखते हैं या फिर इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मतलब फोक कंप्यूटिंग क्यों कहा गया है इसको? सर फॉग क्या होता है? कंप्यूटिंग इसको इसलिए कहा गया है कि जब पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस आर्किटेक्चर के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो इसके लिए एक सीरीज नोड्स काम में लिया जाता है। जो किसी भी डेटा को जब रिसीव करते हैं, तो जो डेटा रिसीव करते हैं तो वो कहीं से सेंड हुआ है, तो वो डेटा सेंड हुआ तो हम स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट बिल्डिंग्स और इनकी जब कल्पना कर रहे हैं तो इनके अंदर कुछ IoT डिवाइसेस लगे होते हैं जो रियल टाइम पे काम करते हैं। और जो रियल टाइम पे जो डिवाइसेस काम करते हैं, उन नोड्स की जो परफॉर्मेंस होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा और सर्विसेज, उसको कुछ मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से उस नोड की जो पीरियोडिकली एनालिटिक और समरी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्लाउड बोलते हैं और फोग बोला जाता है। अब फोग कंप्यूटिंग किस तरीके से काम करता है? फोग कंप्यूटिंग इज ए डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच डेटा, कंप्यूट, स्टोर और एप्लीकेशन टू लोकेट समवेयर बिटवीन द डेटा सोर्स एंड द क्लाउड। कहाँ पर डेटा स्टोर है, क्लाउड और जो डिवाइस है उसके बीच में कहाँ पर वो स्टोर है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना क्या बोलते हैं? इसको फोग बोला जाता है। जिस तरीके से एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर है, एक आपका नेटवर्क है। नेटवर्क मीन्स IoT डिवाइसेस लगे हुए हैं जो पर्टिकुलर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो जो डिवाइसेस का डेटा, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ से जो एक फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था एक्यूरेटर्स, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से सेंस होकर वो डेटा क्लाउड पे जा रहा है। तो क्लाउड और नेटवर्क के बीच में एक डिवाइस लगा रहता है जिसको क्या बोला जाता है? फोग कंप्यूटिंग डिवाइस बोला जाता है। जो क्या काम करता है?
ये चीज़ पता करने का काम करता है कि जो डेटा कहीं से चल रहा है, कहीं जाके स्टोर होगा, लेकिन अब वो बीच में कहाँ पर रुका हुआ है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और वो वहाँ से मैसेज पासिंग करने का काम करता है। ये मोस्टली IoT डिवाइसेस और स्मार्ट सिटीज में ये सारी की सारी चीज़ें यूज ली जाती हैं, किसकी? फॉग कंप्यूटिंग की। इसकी कुछ लेयर्स होती हैं फॉग कंप्यूटिंग की। कौन सी लेयर होती हैं? एक होती है फिजिकल वर्चुअलाइजेशन लेयर होता है, एक मॉनिटरिंग लेयर होता है, एक प्री प्रोसेसिंग लेयर होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज लेयर होता है, एक सिक्योरिटी लेयर होता है और एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन उस डेटा को सेफली डिलीवर करने का काम करता है। सिक्योरिटी लेयर उस पर वो सिक्योर करने का प्रोटेक्ट करता है। टेम्परेरी स्टोरेज मतलब जब कोई डेटा एक दूसरे स्थान पे जा रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर यानी रैम पे स्टोर करके रखते हैं डेटा। प्री प्रोसेसिंग लेयर की मतलब प्री प्रोसेसिंग लेयर के अंदर जब हम कोई भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो वो एक सोर्स टू डेस्टिनेशन जब हम भेज रहे हैं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, उसकी की पर्टिकुलर मॉनिटरिंग जो नोड्स हैं क्या वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस डेटा को। और फिजिकल और वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी नोड को फिजिकली कंप्राइज करते हैं तब हम एक फिजिकल और कंपोनेंट वर्चुअलाइजेशन लेयर को हम यूज में लेते हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर हम स्ट्रीट लाइट के साथ में एक ये जो ट्रैफिक लाइट को हम लगाते हैं और उसको अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि जब उसके अंदर तो रियल टाइम पे प्रिडिक्ट होता है ट्रैफिक कि अब इस सिग्नल को ऑन करना है, इसको ग्रीन करना है, इसको रेड करना है, तो अगर उसमें कहीं भी डेटा रुक रहा है तो वहां से तुरंत जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है वो कौन करता है? फॉग कंप्यूटिंग का काम होता है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। and in addition having all endpoint connecting to and sending raw data to the cloud over the internet can have the privacy, security and legal implementations, especially when the dealing with the sensitive data subject to regulation in the different country. Popular fog computing application include the smart grid, smart cities, smart buildings, vehicle network and the software defined network SDN जिसको बोला जाता है। fog computing versus edge computing क्या होता है? According to the open fog consumption started by the Cisco, the key difference between the edge and the fog computing is where the intelligence and computer power are placed in a strictly fogging environment. Intelligence is at the local area network lane and data is transmitted from the endpoint to a fog gateway where it's then transmitted to source for the processing and result transmissions. In edge computing, the intelligence and power can be either the endpoint or a gateway. Proponent of the edge computing peer is the reduction of the point of the failure because each deliver independent operation and determines which data to store locally and which data to send to a gateway or the cloud for the further analytics. Proponent of the fog computing over the edge computing say it's more scalable and give a better big picture view of the network as the multiple data point feed data into it. ये आपका fog computing का डायग्राम। fog computing सपोज ये नेटवर्क है, ये IoT डिवाइसेस हैं, ये क्लाउड है, इसके बीच में ये नेटवर्क के बीच में क्या होता है? ये fog काम करता है किसी भी मैसेज को ट्रेस करने का। How and why fog computing used? There are any number of the potential use case fog computing. On increasingly common use case of the fog computing is traffic control because the sensors such as those used to detect the traffic are often connected to the cellular network.
cities sometimes deploy the computing resource near the cell tower. These computing capability enable real-time analytics of the traffic data, thereby enabling the traffic signal to respond in the real time to challenging conditions. The basic component is also being extended to the automations vehicle. Autonomous vehicle essentially function as the device because the waste on board the computing power these the vehicle must be able to inget data from the hug number of the sensor, perform the real-time data analytics and then the respond accordingly. What are the benefit of the fog computing? क्या benefits होते हैं? पहला होता है like any other technology for computing has the pros and cons. Some of the advantage first होता है bandwidth conversations. The fog computing reduce the volume of the data that is sent to the cloud, thereby reducing bandwidth consumption and related cost. एक होता है improved response time because the initial data processing occur near the data latency is redundant and overall respectiveness is. The goal is to provide the millisecond and level responsive, enabling data to be processed in near real time. एक होता है network agnostic. Although for computing generally plays the compare the resource line level as the opposed to the device level, which is the case which edge computing the network cloud be एक्सक्यूज मी सर हाँ हाँ सर ये अपने आपने जो नोट्स भेजे और जो आप ये बता रहे हैं उनमें लैंग्वेज में बहुत फर्क है सर। ये अभी भाई- जो एग्नोस्टिक है ना ये नेटवर्क उसमें दिया हुआ नहीं है सर। भाई साहब उसके लास्ट में जाके देखो उसी से तो कॉपी करके मैंने पीपीटी बनाई है यार। हाँ, ये अलग है वो अलग है इसीलिए कह रहा हूँ सर, एक बार खोल के क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़े रात पहले में और उसमें जो दिया हुआ वो इसमें अलग है सर। मैं अभी आपको दोबारा सेंड करता हूँ, वही नोट से मैंने उठा के ये पीपीटी बनाई है। सर मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये उसमें ये वाला नेटवर्क एग्नोस्टिक है ना ये उसमें दिया हुआ नहीं है। हाँ ये हटा दिया तो मैंने, ये क्वेश्चन अच्छा, भी नहीं अच्छा, पूछा अच्छा। मैंने। फॉग कंप्यूटिंग का है सर उसमें? फॉग कंप्यूटिंग का What I तो use for- सिर्फ वो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा, सिर्फ 2 लाइन का लिखना है उसको। हाँ उसमें सर तो ये कहानी थोड़ी लिखनी है भाई साहब। हाँ तो ये आपकी यूनिट थी भाई साहब 4th यूनिट, और इसका आज समापन कर रहे हैं। कल हम 5th यूनिट के साथ में मिलेंगे। जी जी सर, ठीक है, नमस्कार। जी सर। सर इसका भेज दीजिएगा आप, ये जो आपके पास में दोबारा अगर उसमें नहीं